Paper 5, Planning, November 2018, Variant 52. A sample of wastewater contains calcium ions, copper 2 ions, and lead ions. You are to plan an experimental procedure to separate the metal ions in the wastewater sample by forming precipitates of the metal ion. The table shows the numerical values of the solubility products KSP of some of the compounds. For example, the solubility product of calcium chloride KSP equals to calcium ion concentration into chloride ion concentration squared is equal to 2 into 10 to the power of 1 mole cube dm power minus 9. The smaller the solubility product, the easier it is for a precipitate to form. तो इस तरीके से इन्होंने क्लोराइड आयंस, कार्बोनेट आयंस और सल्फाइड आयंस अलॉन्ग विद कैल्शियम आयंस, कॉपर आयंस और लेड आयंस के केएसपी वैल्यूज दिए हुए हैं। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फाइड, lead chloride, lead carbonate, and lead sulfide. You are provided with a sample of water, wastewater containing calcium, copper, and lead ions. HCl, ammonium carbonate, and ammonium sulfide. No other reagent should be used. Standard lab equipment is available. The flowchart below is provided to plan the order of steps for the separation by filtration of the precipitate from the sample of wastewater. Complete the flowchart for each step. State the reagent added and the substance removed by filtration. So step 1 में इन्होंने बोला reagent added is HCl in the sample of wastewater. Substances removed by filtration. अब आपके पास इसमें कॉपर है, आपके पास इसमें लेड है और इसमें कैल्शियम है। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है, कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल होता है, लेकिन लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है। तो सब्सटेंसेस रिमूव बाय फिल्ट्रेशन वुड बी PbCl2 सॉलिड। ठीक है, अब वो रिमूव हो गया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी HCl जो बचा था उसको खत्म कर दिया। अब रिएजेंट कौन सा ऐड करेंगे और क्या रिमूव होगा? अब हमारे पास जो है वो रिएजेंट जो है वो अमोनियम सल्फाइड और अमोनियम कार्बोनेट बचे हैं और हमारे पास कॉपर और कैल्शियम आयंस हैं। तो हमको ये पता है कि अगर हम अमोनियम सल्फाइड डालें उससे कॉपर सल्फाइड बनेगा। कॉपर सल्फाइड शुड बी अ प्रेसिपिटेट बिकॉज बिकॉज कॉपर ऑक्साइड इज अ प्रेसिपिटेट। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हम लोग डालेंगे अमोनियम NH4 ट्वाइस S एक्वस। ये एक्वस है अमोनियम सल्फाइड। इससे जो सॉलिड बनेगा वो होगा कॉपर सल्फाइड। ये सॉलिड है, ये प्रेसिपिटेट होगा, ये रिमूव हो जाएगा बाय फिल्ट्रेशन। अब हमारे पास सिर्फ कैल्शियम आयंस बचे। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम है। अब आप डाल दोगे अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट डालने से जो कैल्शियम आयंस हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट कर जाएंगे। इस तरीके से हमने तीनों आयंस को वन बाय वन अपने इनसॉल्युबल सॉलिड्स के फॉर्म में हमने उन्हें प्रेसिपिटेट आउट कर लिया। लेड क्लोराइड, कॉपर सल्फाइड एंड कैल्शियम carbonate. After the substances formed in each step in A have been removed by filtration, a further drop of the reagent used for that step is added to the wastewater sample. Suggest why this is necessary. अगर कोई कैटायन बच गया हो तो उसको उसमें से रिमूव करना है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे टू रिमूव एनी अनरिएक्टेड कैटायंस that may be remaining. Okay. Between steps 1 and 2, the wastewater sample is neutralized. This is so that steps 2 and 3 will work. Suggest a reagent that should be added to neutralize the wastewater sample. State how you could test that the wastewater sample had been neutralized. अगर आपको वेस्ट वाटर सैंपल को यूटिलाइज करना है और आप नोट करो आगे आप जितने भी
सॉल्ट ऐड कर रहे हो वो अमोनियम सॉल्ट्स हैं, तो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करो, एक्वस अमोनिया डालोगे। रिएजेंट यूज, ऐड अमोनिया एक्वस या NH4OH aqueous, ठीक है। हाउ वुड यू टेस्ट whether it has been utilized? Use a pH meter to make sure the pH reading is 7.0. Use a pH meter to make sure the pH becomes equal to 7.0. अगर 7 हो गया तो न्यूट्रल हो गया आपका वो वेस्ट वाटर। A student completes the reaction in A with a sample of wastewater and obtains one of the precipitates produced, X carbonate. The student plans to calculate the concentration of X2 positive ion present in the sample of wastewater by measuring the mass loss on heating the freshly filtered sample of XCO3 solid. Draw and label a diagram of the experimental setup the student should use. Your diagram should show how loss of solid during heating would be prevented। तो इसके लिए जो डायग्राम बनाना है वो है बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला डायग्राम, और लॉस ऑफ सॉलिड ड्यूरिंग हीटिंग को प्रिवेंट करने का तरीका है बाय कवरिंग द क्रूसिबल विद द लिड। तो इसका डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। ये आपका डायग्राम है। अच्छा, इसके अंदर आपने अपना सॉलिड रखा हुआ है जिसको आप हीट कर रहे हो, और बाकी लेबलिंग कर लेते हैं इस डायग्राम की। ये आपका बंसन बर्नर हो गया। ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। ये आपका मास ऑफ XCO3 सॉलिड हो गया। ये आपकी लिड हो गई, और ये आपका क्रूसिबल हो गया। तो इस तरीके से आप अपने सॉलिड को हीट करोगे। The student weighs the XCO3 precipitate and records its mass. The student then heats the precipitate for 5 minutes and weighs it again. The student records the difference in mass and for, from this calculates the concentration of X2 positive. The precipitate thermally decomposes according to the following equation. Carbonate on heating produces oxide and carbon dioxide gas. Identify two problems with this method. Explain the effect that each problem has on the calculated concentration of X2 positive ion. Okay, so the problems are, एक तो प्रेसिपिटेट जो है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ है, क्योंकि 5 मिनट्स में जरूरी नहीं कि प्रेसिपिटेट ड्राई हो। तो लॉस इन मास जो हुआ है उसमें जो पानी का मास लॉस हुआ है वो भी इंक्लूडेड है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी, क्योंकि लॉस इन मास इंक्लूड लॉस ऑफ वाटर एज वेपर, सो लॉस इन मास इज हाई, ठीक है ना। पानी के मास जो लॉस हुआ डीकम्पोजिशन के में जो मास लॉस होगा CO2 का, उसके अलावा जो गीला सैंपल था उसका भी तो मास होगा जो वाटर लॉस हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो कैलकुलेट करोगे आप X2 पॉजिटिव आयन की वो ज्यादा होगी। अच्छा, दूसरा, आपने 5 मिनट से सिर्फ हीट किया, आपने ये तो कंफर्म किया ही नहीं कि डीकम्पोजिशन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम से क्या होगा, द लॉस इन मास इज लेस, क्योंकि डीकम्पोजिशन में अगर कंप्लीट हो तो ज्यादा मास लॉस होता है। जब लॉस इन मास जो है वो कम होगी तो कॉन्सेंट्रेशन जो आप कैलकुलेट करोगे वो भी कम होगी। तो अब इनको लिखते हैं। प्रॉब्लम 1, प्रेसिपिटेट इज नॉट completely ड्राई। अच्छा, इफेक्ट, लॉस इन मास इंक्लूड्स
the loss of water vapor so loss in mass is high, which results in concentration of X2 positive being high. ठीक है. Problem number 2, decomposition is incomplete. और जब decomposition incomplete होगा तो mass loss कम होगा. ठीक है, और जब mass loss कम होगा तो concentration of X2 positive ion भी कम हो जाएगा. The loss in mass is less, which is equal to concentration of X2 positive ion calculated being lower. ठीक है ना, जितना होना चाहिए उससे कम है अगर डिकम्पोजिशन इनकम्प्लीट रह गया.